Good morning, student. Today we are going to learn problem number 7. Okay, see, in that problem we learn all those concepts related to not for profit concern. So focus on that one problem and this problem from your textbook. So you can write using textbook, you can write in your notebook. Okay, here not required to take a screenshot. Okay, I'll read first problem and explain simultaneously all those concepts related to not for profit concern or related to this one problem. Following is the receipt and payment account of Perennial Sports Club Pune, and additional information given below. You are required to prepare income expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. Here the given receipt and payment account, and you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2019. Okay, see here accounting year is what? 1st April 2018 to 31st March 2019. Means 1819 is our accounting year. Remember that one point. Okay, the next one, the given receipt and payment account on 31st March 2019. Receipt side we see all balances, but here we see three receipts amounts. Okay, right now I explain our accounting year is 2018-19. So current year subscription rupees what? 70,000. How many? 70,000. 16, 17, 17, 18 is our previous year. Understood everybody? Is a previous year. Current year was 2018-19. Okay, I'll read whole problem. Here they given balance brought down. That balance brought down means what? Is the opening balance of cash or bank. Okay, the next one, subscription they are given here 2016-17 means previous year balances rupees 2017-18, 3018-19 is a current year, amounted rupees 70,000. That can be transferred to income expenditure account credit side, means income side. Okay, everybody know that one things. Subscription is our income, that's why we posted always income expenditure account credit side, means income side. The next one, they given donation means what? Here they no any instruction is here, so by default we consider is a general donation. Donation is a organization income, that's why we recorded income and expenditure account income side or credit side. Amount is what? 15,000. Donation amount is what? 15,000. Next one, balance they given entrance fees. What? Entrance fees. Entrance fees means everybody know what is the entrance fees. Entrance fees means are those fees members are paid to enter in a business. That type of fees is known as entrance fees. Entrance fees amount is what? 1,700. How many? 1,700. Entrance fees means what? We received amount from members, means organization received amount from members, that's why is our again income. Life membership fees or revenue. Life membership fees, okay, everybody know because already I'll explain life membership fees means okay, life membership fees means ऐसी जो fees which can be given by member once a life of firm or organization. पूरे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में एक ही बार देते हैं टू गेट लाइफ टाइम मेंबरशिप.
उन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए, इसके लिए वो वन टाइम ही पेमेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी हमारे लिए क्या है, यहाँ पे इनकम है। ओके तो रिसीट एंड पेमेंट साइड रिसीट साइड कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या क्या दिखा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो ओपनिंग है, दैट्स वाई वी आर नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। इसमें से इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन में से हमें इम्पॉर्टेंट बैलेंस कौन सा लेना है, तो 2018-9 बिकॉज अवर करंट ईयर इज वॉट 2018-19। ओके सो 70,000 वी पोस्टेड टू income expenditure account credit side. Next one, donation. Here they given donation again. Donation is again what, income that can be recorded income and expenditure account credit side. Entrance fees same as it is, we recorded income side. Life membership fees means is a lifetime fees that can be recorded income expenditure account credit side. Okay, tournament receipt, after that the given last one is what, tournament receipt is a club, everybody know meaning of tournament. So that time you received amount, so again that can be we consider as a income. Then next one, the balance given, bank overdraft repaid. Okay, here they given bank overdraft repaid. Bank overdraft repaid amounted rupees 35,000 is a repaid amount. So repaid amount, then salaries what, amounted rupees 10,000, salary again our payment, so we recorded income expenditure account. Then next one, electricity charges 4,000, electricity charges 4,000, electricity again expenditure, that's why we recorded income expenditure account debit side. Then municipal taxes means as a type of expenses, so again we recorded income expenditure account debit side. Purchase of sports material, here we purchase sports material, purchase means is again expenses, that's why we recorded, but first one we check any adjustment on that and then we recorded expenditure side. General expenses है, that's why we recorded income expenditure account debit side. Yani expenses, that one also our expenses, that's why we recorded expenditure side. Repair to ground repairing means expenses, that can be recorded expenses side. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वॉट एवर टूर्नामेंट्स दे रन, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे दैट कैन बी एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. हियर द गिवन बैलेंस कैरिड डाउन, balance carried down means was closing balance, and closing balance always be recorded balance sheet asset side. Cash in hand 7,000 and cash at bank rupees 14,000. Clear everybody? Next, after that देखते हैं adjustments. See here, adjustment number 1, first 50% of donation are for building fund. Whatever amount for donation, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैपिटल फंड, मीन्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड. कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, बिल्डिंग फंड के लिए. ओके, बिल्डिंग फंड मतलब क्या है, तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, रिपेयरिंग करना है या एक्सटेंशन करना है, तो उसके लिए अलग से वो फाइनेंस साइड में रखते हैं. दैट फाइनेंस इज नोन एज अ building fund. So whatever amount we received as a donation, that 50% amount we transfer to as a building fund. 70% of the entrance fees should be capitalized.
यहाँ पे 70% एंट्रेंस फीस, मतलब 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो रहा है, दैट्स वाई वहाँ से लेस होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट होगा कैपिटल फंड के अंदर ऐड। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं दिया है, राइट। तो हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना देखते हैं वर्किंग नोट में, बट पहले फिलहाल देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन ₹5,000 फॉर द ईयर 16-17 and ₹1,000 for subscription, subscription ₹500 फॉर द ईयर ₹16-17। 16-17 के लिए सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 500 है। एंड 1,000 फॉर 17-18 स्टिल इन अरियर, मीन्स 17-18 अभी तक क्या है, अरियर है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है। नेक्स्ट वन देखिए, गिवन following is a balance appear in the books of as on 1st April 2018, means they given as opening balances। ओके सी ऐसे भी दे सकते हैं एडजस्टमेंट, तो इसकी दो पोस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ पोस्टिंग ही होगी, तो एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, पोस्टिंग ही है। तो यहाँ पे दोनों ने क्या दिए है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। देखते हैं क्या क्या ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। फर्स्ट वन दे गिवन बिल्डिंग फंड। अभी रिसेंटली मैंने बताया कि बिल्डिंग फंड मतलब क्या है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है या रिपेयरिंग करना है या कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो फंड या फाइनेंस साइड में निकाला जाता है उसे कहा जाता है बिल्डिंग फंड। तो वो फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। याद रहेगा सबको, बिल्डिंग फंड यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी, बिकॉज वो खर्चे हम करने वाले हैं, इन फ्यूचर में हमें वो पैसे क्या है, पेबल है, दैट्स वाई वो क्या है, अभी वो हमारे लिए पेबल है, दैट्स वाई इज अवर बिल्डिंग फंड। लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने लास्ट इसमें देखा था, दिखाती हूँ फिर से। यहाँ पे दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। तो जो भी हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट थी, हमारी अमाउंट थी 32,000, वो हमने पे की है। पेमेंट साइड में मैंने अभी आपको दिखाया, वो हमने पे किए हैं। लैंड की अमाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है सारे, याद रखो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। सो रिसीट ऑन पेमेंट है वो कब का है, ईयर एंड का है, दैट्स वाई ये क्या होगा, जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो नील हो जाएगा, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने नील किया था, प्रॉब्लम नंबर 6 में। वैसे ही लैंड दिया है 1,50,000, वो कहाँ पे जाएगा, एसेट से। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल, मैंने ये बताया था कि वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल है परचेस, वो परचेस था, ये वो मतलब ईयर के बीच में परचेस करे थे, मतलब अप टू ईयर एंड तक उन्होंने परचेस किया था। यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस में जो भी पेमेंट साइड में जो बैलेंस दिया है, दिखाती हूँ फिर से। ये जो बैलेंस है वो क्या होगा, ऐड होगा, 50,000 उसके अंदर ऐड होगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 के लिए सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,500। उसमें से सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है 16-17 का 500, अभी ऊपर वाले एडजस्टमेंट में हमने देखा। देखते हैं, कंटिन्यू आई रीड होल प्रॉब्लम फर्स्ट वन एंड एक्सप्लेन आल्सो। 17-18 के लिए क्या है, 4,000 है। ओके ये उन्होंने क्या है, इन्फॉर्मेशन दी है। देखते हैं नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितनी अमाउंट है, ₹8,000। ओके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे गिवन 8,000। इसके पहले भी हमने एक एडजस्टमेंट की थी, तो मैंने वहाँ पे बताया था अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो ऐड करना है, क्लोजिंग दिया है तो वो क्या करना होगा, लेस करना होगा। ओके सो देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है, 8,000 एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है उसके ऊपर 12.5% पर एनम। ओके ये थे एडजस्टमेंट प्रॉपरली एक बार देखो क्या क्या है उसमें, क्या क्या सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब वो बिल्डिंग फंड के लिए ये है। 70% एंट्रेंस फिर कैपिटलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन दिए, मतलब लाभ 16-17 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी है, ₹500 है।
देन 17-18 के लिए अभी तक अरियर है, कितने अरियर है मतलब वो अभी तक पे नहीं किया, कितने हैं 1000 है। एंड एज वेल एज द गिवन ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या दिए है, लाइबिलिटी सॉरी बिल्डिंग फंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड दी है, स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 एंड 17-18 एंड एज वेल एज लास्ट सेकेंड फिफ्थ वन एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो हमें पता ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, तो क्या करना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है और उसके ऊपर हमें क्या मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है क्योंकि वो हमारे लिए एसेट्स है ना। देखते हैं पोस्टिंग क्या क्या की है। यहाँ पे दिख रहा है हमें सैलरी डेबिट साइड जाएगी बिकॉज एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है 4000 आउटर कॉलम में, म्यूनसिपल टैक्सेस 2700 आउटर कॉलम में। देखो स्पोर्ट्स मेडल के बारे में बताया था, स्पोर्ट्स मेडल क्या कहाँ पे लिखना है हमें, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में पहला वाला बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिखा था 30,000, एडजस्टमेंट में दिखाती हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंस कितना है 30,000 है, दिखा, फिर से दिखा रही हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंस क्या है 30,000, कितना है बैलेंस 30,000। तो 30,000 बैलेंस हमें क्या करना है वहाँ पे लिखना है, ओपनिंग बैलेंस है ना, एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस भी सॉरी एडिशनल भी दिया था। एडिशनल बैलेंस हमें कहाँ पे मिला था, रिसीट एंड पेमेंट साइड, दिखा दी। ये रहा, ओके ये था हमारा एडिशनल। तो एडिशनल क्या करते, ऐड करते, तो क्या होगा वो ऐड होगा, हो गया 30,000 प्लस 50,000 80,000 बैलेंस आ गया। कितना आया 80,000 बैलेंस आ गया। उसमें से उन्होंने हमें वो एडजस्टमेंट दी थी, क्या दी है एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दी थी वहाँ पे। एडजस्टमेंट दी थी क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल ₹8,000, ओके क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल का ₹8,000। तो हमने लास्ट एडजस्टमेंट मतलब उसके पहले वाले प्रॉब्लम में पढ़ा था कि एडिशनल सॉरी ओपनिंग बैलेंस है तो क्या करो ऐड करो, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्या करो लेस। तो यहाँ पे हमें क्या करने होंगे, वो क्लोजिंग बैलेंस जो भी दिया है वो क्या हमें करना है, लेस करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 8,000, तो अभी 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस का जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाए, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड जाएगा। देखो ये थी हम 8,000, देखो 8,000 दिखा सबको, ओके ये 8,000 क्लोजिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स मटेरियल का। अब तक हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया, अभी क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या आया था 8,000 नॉट अ 72,000। याद रखो 72,000 इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, हमने कितने कंज्यूम किए गुड्स वो बैलेंस हमें मिला, ओके मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी बैलेंस दिया है उसमें से उसमें क्या करो ऐड करो ओपनिंग बैलेंसेस, फिर लेस करो क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, कंजम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे हमें कंजम्पशन मिल गया। 72,000 कंजम्पशन था, पर 8,000 क्या हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस एज इट इज क्रेडिट डेबिट साइड लिख दे उन्होंने। लियन एक्सपेंसेस रिपेयर टू ग्राउंड, ये भी क्या है एक्सपेंसेस ही है, रिपेयर टू ग्राउंड। डेप्रिसिएशन अभी दिखाती हूँ, एक वन बाय वन दिखाती हूँ सारे एडजस्टमेंट, ओके टूर्नामेंट रिसीट दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन दिया है, बिल्डिंग फंड लिखा हमने, पोस्टिंग सिर्फ देखते हैं पहले, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप ये सारे हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। एंड एडजस्टमेंट देखते हैं वन बाय वन। फिर कैपिटल फंड बैलेंसेस हमें नहीं दिया तो हमने निकाला है, कैसे निकालना दिखाती हूँ। देन बिल्डिंग फंड 72,000 47,000 हमें दिया ही हुआ था।
कैश इन हैंड, जो रिसीट एंड पेमेंट साइड में बैलेंस था वो हमने लिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एडजस्टमेंट में था। लैंड का बैलेंस दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो अभी यहाँ पे इस एडजस्टमेंट, इस वर्किंग नोट के ऊपर फोकस करो, ये बहुत नेसेसरी है। देखो इसके पहले वाला एक प्रॉब्लम दिया था मैंने, ओके, स्टार सिटीजन्स, तो वहाँ पे कैपिटल फंड दिया था, नहीं दिया था, दैट्स वाई वहाँ पे बैलेंस शीट भी नहीं बनाया था। याद है सबको? मोस्ट ऑफ द, मतलब साक्षी दस्तूरे, आई थिंक, हाँ साक्षी दस्तूरे, उसने ये कमेंट भी डाला था वहाँ पे कि वो प्रॉब्लम मैम रॉन्ग है। तो वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया था। ओके, वो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो दैट्स वाई तो उन्होंने बताया था ना इन प्रॉब्लम, द गिवन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना था, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। सो दैट्स वाई वहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था। अगर इस केस में ऐसे आता है तो नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखो कि वहाँ पे अगर इनकम एक्सपेंडिचर बताया तो सिर्फ हमें इनकम एक्सपेंडिचर ही सॉल्व करना है, क्योंकि मार्क्स जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है वो इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करना मतलब एज पर मार्क्स सिस्टम से इवैल्यूएट किया जाता है कि इसके लिए वेटेज कितना है। अगर उसके लिए वेटेज क्या है, 12 मार्क्स है, तो 12 मार्क्स में बैठना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। और इनिशियल में जो भी प्रॉब्लम मैंने लिए थे वो क्या लिए थे, आपको समझ के लिए छोटे छोटे लिए थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं लिए थे। सो दैट्स वाई मैंने आपको ऐसा भी एक एग्जांपल दिखाया कि वहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो ये याद रखो। अभी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं दिया है और आपको पूरा प्रॉब्लम टैली करना है, नहीं दिया है, नहीं समझ में आ रहा मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वाला प्रॉब्लम भी आप टैली कर सकते हो अभी, तो उसके लिए क्या करना है, अभी जो स्टार सिटीजन है ना उसका भी प्रॉब्लम आप टैली कर सकते हैं। यूजिंग दैट वन प्रॉब्लम यू कैन टैली दैट वन प्रॉब्लम ऑल्सो। तो वो टैली कैसे करना है? ओके, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये वर्किंग नोट हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं वर्किंग नोट। फर्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है, दैट्स में हमें क्या लगेगा, रिसीट एंड पेमेंट लगेगा। जो भी एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे वो भी लगेंगे। सो देखते हैं कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करना है। देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट में एंड एज वेल एज एडजस्टमेंट में जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे वो लेने हैं। तो एडजस्टमेंट में हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे लैंड का, याद है? या दिखाती हूँ। देखो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे हमें। ओके, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे। अभी वो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे हमारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे लैंड दिखी हमें 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 ओपनिंग बैलेंस से दिया था। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं दिखाती हूँ फिर से आपको, ये कहाँ से आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दिखा आपको ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने अभी कहा कि जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो हम सब रिकॉर्ड करने वाले। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 के लिए 2,500 है, 17-18 के लिए कितना है, 4,000। तो वही सेम एज इट इज़ बी रिकॉर्डेड हियर इन अवर एडजस्टमेंट या वर्किंग नोट बैलेंस शीट के अंदर 2,000 एंड 4,000। कैश इन हैंड कौन सा वाला बैलेंस लेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस था। कौन सा ओपनिंग, दिखाती हूँ ओपनिंग कौन सा वाला, ये वाला ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओके, ये वाला ओपनिंग बैलेंस लेना है क्योंकि हम वहाँ पे ओपनिंग सारे बैलेंसेस ले रहे हैं। कौन से बैलेंसेस ले रहे हैं, ओपनिंग। तो वर्किंग नोट, अगर आपको यूजिंग वर्किंग नोट आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस लेने। तो मैंने क्या क्या लिया यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग का लिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल लिया है, 2 दिया था ऑलरेडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, 17-18 एंड एज वेल एज कैश इन हैंड उस टाइम का ओपनिंग बैलेंस। ओके,
देन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था 32,000, याद है, फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट था। ओके, एंड बिल्डिंग फंड अमाउंट भी दिया था। बिल्डिंग फंड कितना दिया था? 47,000। दिखाओ। ये है बिल्डिंग फंड। ओके, ये आ गया वहाँ पे। तो अभी टैली करते हैं। टैली करने के बाद हमें बैलेंस देखो क्या दिखता है। हमारी एसेट की टोटल है, देखो एसेट की टोटल क्या हमारी 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000 प्लस 6,500 प्लस 5,000। तो आंसर आ रहा है 1,91,500। ओके, एंड देन क्रेडिट क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट वन बैलेंस दिया 47,000 एंड 32,000। 32,000 है तो टोटल हो रही है हमारी 79,000। कितनी हो रही है? 79,000। 1,91,500 में से लेस करते हैं 79,000। सो हमें आंसर मिल रहा है, वी गॉट आंसर 1,12,500. This one is our capital fund amount. We are calculating this one amount using, कैसे कैलकुलेट किए हैं? 1,91,000 माइनस 79,000। 1,91,500, 1,91,500 माइनस 79,000। सो हमें आंसर मिला, क्या आंसर मिला? 1,12,500। तो वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल फंड का बैलेंस है। सबको याद रहेगा किस टाइप से हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। तो हमने ये कैपिटल फंड कैलकुलेट किया है। तो कहाँ पे जाएगा वो कैपिटल फंड? लायबिलिटी साइड। ओके, ये गया यहाँ पे लायबिलिटी साइड। ये होगी थी हमारी पोस्टिंग। सिर्फ हमने अभी क्या की है? पोस्टिंग। तो देखते हैं एडजस्टमेंट वन बाय वन। एडजस्टमेंट नंबर 1, 50% और ऑफ 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। जो भी क्या है डोनेशन है दैट कैन बी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। सो 15,000 है तो 50% क्या होगा? 7,500 दैट कैन बी ट्रांसफर टू, ये फर्स्ट वन एडजस्ट, दिस वन इज अ फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, दैट कैन बी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का वेर इज द बिल्डिंग फंड? बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड वी कैन ऐड अंडर दैट। सो उसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्डिंग फंड के अंदर 47,000 के अंदर 7,500। 7,500 कैसे आए ये सबको पता है। 15,000 डोनेशन का बैलेंस था, उसके हाँ 50% करते हो तो क्या आता है बैलेंस? 7,500। सो ये थी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट की फिर से पोस्टिंग दिखाती हूँ कहाँ पे की है हमने। फर्स्ट एडजस्टमेंट की पोस्टिंग लेस एडजस्टमेंट में फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डोनेशन एंड सेकेंड इफेक्ट add under capital fund. Okay, clear everybody? Okay, first adjustment, then second adjustment, 70% of donation entrance fees should be capitalized. क्या हो रहा है? कैपिटलाइज हो रहा है। 70% क्या हो रहा है? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो रहा है। सो सी हियर एंट्रेंस फीस अमाउंट इज व्हाट? 1,700। उसके 70% कितना हो रहा है? 1,190। ओके, सी 1,190। तो अभी वो क्या होगा? ये थी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट, उसमें से लेस किया, से रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 510। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, कहाँ पे जाएगा? कैपिटलाइज हो रहा है तो मतलब क्या होगा? कैपिटल फंड के अंदर ऐड, कैपिटल फंड के अंदर ऐड। ओके, ये थी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे, फर्स्ट इफेक्ट हमने एंट्रेंस फीस से लेस किया था, सेकेंड इफेक्ट हमने क्या किया है? कैपिटल फंड के अंदर
ऐड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1000 फॉर 17-18 स्टिल इन आरियर। अभी तक क्या है वो आउटस्टैंडिंग है। ओके देखते हैं, आउटस्टैंडिंग है तो लिखेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी अमाउंट अगर आउटस्टैंडिंग है, याद रखो प्रीवियस ईयर के अमाउंट क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारे लिए कहाँ पे जाएंगे, कितने थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 एंड 1000 क्या है एडजस्टमेंट में 500 एंड 1000। देखो एक बार दिखाती हूँ, ये थर्ड एडजस्टमेंट 500 एंड 1000। ओके तो लिखते हैं, उसका इफेक्ट करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड 5000 एंड 1000। ओके अंडरस्टूड एवरीबॉडी। उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा, याद रखो स्टूडेंट, उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। सो उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है डायरेक्टली हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं ना, वैसे ही प्रीवियस ईयर की अमाउंट है तो हम क्या लिखते हैं, एसेट साइड लिखते हैं। ये भी याद रखो, ये भी वर्किंग नोट के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट है तो एसेट साइड जाएगी, प्रीवियस ईयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड जाएगी, नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है तो कहाँ पे जाएगी, लायबिलिटी साइड। फोर्थ वन एडजस्टमेंट तो पता है, ये सारे क्या थे, ओपनिंग बैलेंसेस थे। फिफ्थ वन एडजस्टमेंट देखते हैं, फिफ्थ वन एडजस्टमेंट क्या है, करंट ईयर, क्या करंट ईयर के क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसका इफेक्ट होगा जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसके अंदर ऐड। ये थी हमारी फिफ्थ वन एडजस्टमेंट, उसके अंदर ऐड, ये देखो ऐड हो रहा है। तो 70,000 प्लस 8,000 क्या हो गया, 8,000 78,000, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट सॉरी फिफ्थ है ना एडजस्टमेंट नंबर, ओके फिफ्थ है, तो ये एडजस्टमेंट फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट। ओके सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसका, एवरीबडी नो दैट वन थिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब अगर इनकम आउटस्टैंडिंग अभी तक क्या है, रिसीवेबल है, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर में हमें वो पैसे मिलने वाले हैं, या फर्म को मिलने वाले, सॉरी फर्म को मिलने वाले, दैट्स वाई वो क्या होगा, एसेट साइड जाएगा। हो गया फोर्थ वन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन क्या है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेडल 8,000 दिए हैं एंड उसके एंड स्पोर्ट मेडल के ऊपर 12.5% हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ये एडजस्टमेंट तो मैंने बताई थी यहाँ पे कि वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है वो ऐड होगा, क्लोजिंग होगा, मतलब अब एडजस्टमेंट नंबर 6 के लिए फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस 6 के लिए इफेक्ट हो गया फर्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6 के लिए फर्स्ट इफेक्ट क्या है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का एसेट साइड। ओके अभी हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। कितना निकालना है डेप्रिसिएशन, 12.5 निकालनी है। ओके स्टॉक की अमाउंट कितनी है, ओके कोई बता सकता है स्टॉक की अमाउंट कितनी है, राइट नाउ हवर स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक की अमाउंट कितनी है, कोई बता सकता है, नहीं, स्टॉक की अमाउंट क्या है हमारी, जो असेट साइड में दिख रही है, असेट साइड में अमाउंट क्या दिख रही है, स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट 8,000,
जो वहाँ पे दिख रही है अमाउंट वो नहीं लिखनी, वो क्या है, कंजम्पशन है ना। कंजम्पशन मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो वो एक्सपेंसेस थे। यहाँ पे जो भी हमारी स्टॉक की अमाउंट है वो क्या है, 8,000 है। 8,000 के ऊपर 12.5% निकालो तो आंसर आ रहा है 1,000। तो 1,000 इज अवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है, दैट्स वाई वहाँ से लेस होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ पे जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो आपको यहाँ पे दिखेगा 1,000 मिला। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखो हमने क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़े, क्या क्या एडजस्टमेंट देखा है हमने यहाँ इस प्रॉब्लम में। फिर से एक बार बताती हूँ क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़े हमने। फर्स्ट वन एडजस्टमेंट, अभी यहीं पे इफेक्ट बताती हूँ, फिर वहाँ पे जाके फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट वन इफेक्ट किया था हमने डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, दैट्स वाई we less that one amount from donation. And second effect, add under building fund. Clear everybody? फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए फर्स्ट इफेक्ट हमने कहाँ पे किया था, लेस फ्रॉम डोनेशन, एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड अंडर बिल्डिंग फंड. Then 70% of entrance fund should be capitalized. That can be capitalized, that's why we less from entrance fees. And second effect, capital fund can the add. Understood? First one effect, less from entrance fees, and second effect, add under capital fund. Capital fund कहाँ पे आपको सबको पता है, बैलेंस शीट liability side. Then subscription 500 for 16-17 and 1,000 17-18, ये अमाउंट जो भी है अभी तक क्या है, आउटस्टैंडिंग है। जो भी 16-17 एंड 17-18 की जो भी अमाउंट है 500 और 1,000 क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो उसका डायरेक्टली हमने पोस्टिंग की थी, उसकी क्या की थी, पोस्टिंग की थी बैलेंस शीट एसेट साइड। सबको याद रहेगा यहाँ पे हमने क्या की थी, उसकी पोस्टिंग। उसके साथ में मैंने और एक कंसेप्ट भी बताया था कि क्या है, प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर की कोई अमाउंट सब्सक्रिप्शन अमाउंट है तो वो कहाँ पे जाएगी, लायबिलिटी साइड। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं, स्टिल अरियर है। सो दैट्स वाई कहाँ पे गया, सिर्फ हमने पोस्टिंग की उसकी, कहाँ पे, बैलेंस शीट एसेट साइड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने यूज़ किए थे टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। और एज वेल एज हमने यहाँ पे भी पोस्टिंग किया, हमारे बैलेंस शीट जो भी रियल बैलेंस शीट है वहाँ पे भी पोस्टिंग की है। एंड कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए भी हमने वो यूज़ किया है बैलेंसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट के लिए क्या किया है, क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, वो अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। और सेकेंड इफेक्ट होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सबको याद रहेगा, फर्स्ट इफेक्ट ऐड करो सब्सक्रिप्शन के अंदर, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल दिया उन्होंने, अमाउंट दी 8,000। तो जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल है उसमें से हमने वो अमाउंट लेस की थी। सेकेंड इफेक्ट हमने लिया था बैलेंस शीट एसेट साइड। और जो भी वहाँ पे बैलेंस था एसेट साइड में, जो भी बैलेंस था उसके ऊपर हमने क्या निकाला है, डेप्रिसिएशन निकाला है 12.5%। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ऐसे हमने सॉल्व किया था। कंफर्म? ओके, सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए सबके। डेप्रिसिएशन का हमने दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखा था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा था। एक बार फिर से प्रॉब्लम देखो, प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में सारे कंसेप्ट, आज तक जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट क्या है, इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हो, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो,
ये भी इस प्रॉब्लम में आया है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी है या स्टॉक निकालना है, उनका कंजम्पशन निकालना है, ये भी इस प्रॉब्लम के अंदर आया है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो आस्किंग है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सारे एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम के अंदर आए हैं। सो एक बार फिर से रिव्यू करो या नोट डाउन करो, या आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। सॉल्व प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 9। थैंक यू।